Hello friends, I Anjali welcome you all to my YouTube channel which is Literature with Anjali. I have provided you my Instagram and email address. So if you face any problem after this particular video, you can DM me or email me. I'll be there to clear your doubt. And if you feel like no that your doubt needs more explanation, then you can DM me. We can be one-on-one live and we'll be discussing each and everything together. Okay. So, without wasting any time, today's topic is Anglo-Saxon period. In Anglo-Saxon period, we will be majorly talking, our topic will be completely revolving around the two major aspects. The first is the making of the English nation, and other is the Anglo-Saxon literature. तो अगर हम मेकिंग ऑफ द इंग्लिश नेशन की बात करेंगे तो हियर वी विल बी डिस्कसिंग हाउ इंग्लैंड वाज फॉर्म, how it was invaded, and how these invasions led to the changes in the socio-cultural aspects, and that socio-cultural aspect resulted in change in the literature or in the formation of the literature. Okay. सो एंग्लो सैक्शन पीरियड में हम मेजरली दो चीज़ों की बात करेंगे. सबसे पहला है मेकिंग ऑफ द इंग्लिश नेशन और दूसरा है एंग्लो सैक्शन लिटरेचर. अगर मेकिंग ऑफ द एंग्लो सैक्शन की बात करें तो उसमें हम क्या देखेंगे कि कैसे इंग्लिश या आइलैंड ऑफ इंग्लैंड बना, जो बेसिक से स्टार्ट करेंगे, कैसे कौन से इन्वेजन हुए और कैसे उसमें डायलेक्ट्स चेंजेस आए और उसके बाद में कैसे लिटरेचर पे वो इफ़ेक्टिव था या इन चीज़ों से लिटरेचर कैसे फॉर्म हुआ. सो वी विल बी डिस्कसिंग दिस थ्रू आउट द वीडियो. ऑल राइट. तो अब इस वीडियो के बाद में आपके सामने ये डेट्स हैं. ये डेट्स कुछ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है एंग्लो सैक्शन पीरियड के लिए. The important dates I have marked with the asterisk, so you have to remember it just in case if you land with any event or any sort of invasion, you may have an idea that this happened this time, so this is the resultant of this particular time. Okay. However, I will be uploading this on Instagram as well, so if you want you can take screenshot from there also. So okay, let's start the topic. Without wasting any time, I'll be discussing the Anglo-Saxon period or the things which happened before Anglo-Saxon period. अब इसको Anglo-Saxon period क्यों बोलते हैं या Anglo-Saxon period कैसे आया, ये समझना ना बहुत ज़्यादा important हो जाता है. ठीक है. तो sorry, I'll have to keep on adjusting my screen because of this paper, because I do not have that good setup. Sorry for this inconvenience. Okay. सो ओके, अब देखेंगे क्या कि विल स्टार्ट फ्रॉम द केल्ट्स. केल्ट्स बेसिकली जब आए तो किस टाइम पे आए, कब आए, ये हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में क्लियर नहीं है. बट ये 55 BC तक थे, ये क्लियर है. केल्ट्स को ब्रिटेन्स भी बोलते हैं और इसी वजह से जो आइलैंड ऑफ इंग्लैंड है उसे ब्रिटेन्स भी बोलते हैं. ठीक है. Because Celts को Britons बोलते थे and they are the inhabitant of that particular island. That's why Celts were called as Britons and even the island was called as Britons. Okay. So Celts पे अटैक किया रोमन्स ने. It was the Romans who attacked the Celts, and the first attack which was done on the island of England was by Julius Caesar, and he was a Roman emperor. Okay. So after the invasion, these Romans were here only for few time and then they left. Then again there was an invasion on the island of England which was done by the Roman Empire itself, and as a result what happened that Romans stayed here for 400 years. अगर हम फिर से बात करें या हम बहुत ध्यान से इस चीज़ को समझेंगे क्योंकि यही सबसे बेसिक है और इम्पॉर्टेंट है. केल्ट्स थे, केल्ट्स पे रोमन्स ने अटैक किया. रोमन्स में अटैक किया जूलियस सीजर ने. उनके अटैक के बाद में जब वो आए वो थोड़े टाइम के लिए थे एंड दे लेफ्ट. उसके बाद में दोबारा से अटैक किया उन्होंने. किस पे किया? केल्ट्स पे. और फिर से कॉन्कर किया. इस बार कॉन्कर करने के बाद में वो यहाँ पे नेटिव बन गए यहाँ के और काफ़ी अच्छे खासे समय तक यहाँ पर रहे, जो कि 400 ईयर्स तक का टाइम है. और हुआ क्या कि जो केल्ट्स थे वो कौन सी भाषा बोलते थे? केल्टिक. केल्ट्स यूज टू स्पीक केल्टिक लैंग्वेज. व्हेन द रोमन्स कॉन्कर्ड इट, जब रोमन ने कॉन्कर कर लिया तो द लैटिन बिकेम द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द आइलैंड ऑफ इंग्लैंड. वाई इट बिकेम द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द आइलैंड ऑफ इंग्लैंड? बिकॉज रोमन्स केम फ्रॉम इटली and Latin was the official language of that particular place.
सो अब जो भी पावर डोमिनेटिंग होती है, लैंग्वेज हमेशा उसी की ही डोमिनेट करती है उस पर्टिकुलर प्लेस पे, जो कि मैं इसे और ब्रीफली बताऊंगी इस फ्लो चार्ट को ख़त्म होने के बाद में। ठीक है, तो अब हमने कहाँ तक पढ़ा कि सेकेंड टाइम रोमन्स आए, तो रोमन्स आए तो लैटिन भी आ गई। ओके, फिर रोमन्स आए तो पिक्ट्स एंड स्कॉट्स, दे वर अ ट्राइब, a Germanic tribe, a barbarous tribe, and they were attacking continuously on the island of England. And to protect themselves, Roman made a wall known as Hadrian's Wall. And this particular name, Hadrian's Wall, is important for the exam point of view. So they made a Hadrian's Wall, but it was not of use. So what the Romans decided to leave the island and go back to their place. So they left it. Now who was left in the island of England? It was Celts only. It was only Celts. So Celts were left and they were unable of defending themselves. जो Celts थे वो अपने आप को डिफेंड नहीं कर पा रहे थे, जिसके लिए उन्होंने ट्राइब्स बुलवाए। जो कौन से ट्राइब बुलाए? जर्मैनिक ट्राइब बुलाए, एंगल्स, सैक्शंस एंड जूट्स। और ये कहाँ से आए? जर्मनी से। बट उस टाइम पे जर्मनी एज अ नेशन नहीं था, देर वॉज नो नेशन कॉल्ड एज जर्मनी, सो वी विल से दैट दे केम फ्रॉम स्कैंडिनेविया और फ्रॉम द रशिया पार्ट। ओके, सो इज़ इट क्लियर टू यू पीपल? एंड उसके बाद में क्या हुआ? जूट्स, एंगल, सैक्शंस आए, बट जूट्स वर नॉट एबल टू keep their things at that time, or they were not able to make their own power, or they can't be no in that particular for that long particular time. So angles and sections were only left, and इन्हीं के नाम पे एंग्लो सैंक्शन पीरियड आता है, और यहीं से एंग्लो सैंक्शन पीरियड स्टार्ट हो जाता है। वाई? बिकॉज दे स्टेड हियर, दे बिकेम नेटिव, एज अ रिजल्ट ऑफ विच जर्मैनिक डायलेक्ट बिकेम द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द आइलैंड्स ऑफ द केल्ट्स। सो is it clear to you? And in by the angles only, the angles were the most powerful one, and angles and sections को मिला के एंग्लो सैंक्शन आता है। एंड सो दिस इज़ ऑल अबाउट द एंग्लो सैंक्शन पीरियड। अब इसके आगे क्या हुआ, कैसे हुआ, वी विल बी डीलिंग इट बट लेटर। अब इस टाइम का क्या लिटरेचर था, इस टाइम की क्या चीज़ें थी, वी विल बी डीलिंग विद दैट ओनली। सो उसके बाद में क्या है? एंड वन मोर थिंग, ये एंगल्स आए, सेक्शंस है, ये हिस्टोरिकली हमें पता कैसे चलता है? ये हमें पता चलता है बीड्स, ही वॉज अ पोएट, उनकी जो एक फेमस वर्क थी बीड्स एक्लियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश, फ्रॉम देयर वी गेट ऑल दीज सोर्सेज। ओके, आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस फ्लो चार्ट की जो भी आता है उसी की लैंग्वेज क्यों डोमिनेटिंग होती है। इसको बहुत सिंपल तरीके से हम समझेंगे। इंडिया में क्या था? अर्लियर इट वॉज संस्कृत, एंड संस्कृत इसलिए थी क्योंकि वहाँ के लोग संस्कृत बोलते थे, इसलिए वो संस्कृत लैंग्वेज डोमिनेटिंग थी। बट व्हाट हैपेंड? Muslims came, basically Mughals came, and from where they came? They came from Persia. So their language was Persian, and Persian became the official language or the domineering one. Then what happened when the Mughals left, as a result of which there was a strong impact of the languages on the particular place, which led to the origin of two other languages. One was Hindi and other was Urdu. And when English came, or the Britishers came, the English became the official language of the India. And when they left, Hindi became the prevalent one. And Urdu stayed with us only because the natives, basically the Muslims also stayed here. They are the natives now. So the Urdu is also one of the language as a gift to us. तो ये तो एक कॉन्सेप्ट हो गया। दैट सेम गोज फॉर केल्ट्स और द आइलैंड ऑफ इंग्लैंड और फॉर द ब्रिटेन्स। हाउ? केल्ट्स रहते थे तो लैंग्वेज थी केल्टिक, उन पे अटैक किए रोमन्स ने, 400 ईयर्स तक रहे, तो उनकी जो लैंग्वेज थी वो थी लैटिन। लैटिन बिकेम द प्रेवलेंट लैंग्वेज इन द आइलैंड ऑफ इंग्लैंड बिकॉज ऑफ द रोमन्स। एंड जो रोमन्स थे, इनका जो रिलीजन था दैट वाज क्रिश्चियनिटी, एंड क्रिश्चियनिटी ऑल्सो स्प्रेड हियर बिकॉज and because of that it was the Bible which was written in Latin that can be really sensed with from all these aspects. उसके बाद में क्या हुआ? पिक्ट्स एंड स्कॉट्स आए,
जिनको डिफेंड किया एंग्लो सैक्शंस ने, बिकॉज दे केम एज मर्सिनरीज बट लेटर ऑन दे स्टेड हियर एंड बिकेम द नेटिव ऑफ द आइलैंड ऑफ इंग्लैंड। एंड ये कहाँ से आए थे? जर्मनी से आए थे, यानी जर्मैनिक ट्राइब थी ये। तो उनकी कैसी लैंग्वेज हो गई? जर्मैनिक डायलेक्ट की हो गई। इसीलिए अगर आप ओल्ड इंग्लिश को देखोगे तो वो कहीं ना कहीं जर्मैनिक ट्राइब से बहुत मिलती है। और इवन जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट हैं ABCDEFGH, दे आर नॉट ऑफ इंग्लिश, दे आर बेसिकली बिलोंग टू जर्मनी, और सॉरी रोमन्स, they belong to Romans, so we say that these are the Romans alphabet. All right, so is it clear to you कि कैसे क्या होता है? अब उसके बाद में हम बात करेंगे नेक्स्ट हमारा है कि केल्ट्स कहाँ गए? द केल्ट्स वर ड्रिवन इनटू द वेल्स एंड एंग्लो सैक्सन किंगडम जो है, एंग्लो सैक्सन किंगडम इज मेड अप ऑफ 5 kingdoms, basically the Northumbria, Mercia, East Anglia, Kent, and the Wessex, among which the Kent is the important one because from here, sorry, the Northumbria is the important one because from here it was the oral literature which was produced, और दी वी कैन से कि अगर जहाँ से शुरू हुआ वो नॉर्थम्ब्रिया था। एंड नॉर्दर्न पार्ट्स में अगर आप जाओगे तो आपको पोइट्री ज़्यादा मिलेगी। और वेक्सेस इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज ये क्या बोलते हैं, यहाँ पे सारी पॉलिटिकल चीज़ें होती थी, पॉलिटिकल हब था बेसिकली, जो जहाँ से पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ सारी होती थी। और यहीं से ही जो किंग द एल्फ्रेड थे, ही यूज टू handle each and everything, and West Saxon was the dialect which was spoken here. And King Alfred also used to write or to translate many works just to preserve his own language. Okay, so now we will come to the literature. अब literature में भी we will be dealing with the Anglo-Saxon poetry. अब एंग्लो सैक्सन पोइट्री पढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो उस टाइम का लिटरेचर था, या पोएट्री से ही स्टार्ट करेंगे। तो अगर हम प्रोज़ और पोएट्री की बात करेंगे तो सबसे पहले पोएट्री आई थी, प्रोज़ बहुत बाद में आया था। रिटन कंटेंट अवेलेबल नहीं होता था पोएट्री के टाइम पे, क्योंकि जो राइटिंग है वो बहुत 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 बाद में आई है। जब एंग्लो सैक्सन पोएट्री पढ़ोगे तो आपको कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक जो हैं वो कॉमन मिलेंगे। वो कौन कौन सी चीज़ें कॉमन मिलेंगी? एक, उनका नेचर के लिए प्यार, सी के लिए, रिलीजन के लिए, और वहाँ के जो भी वॉरियर्स होते थे या बेसिकली जो बहुत वॉर फाइट्स होती थी, इन सब चीज़ों को ही वो ग्लोरीफाई करते थे। और ओरल ट्रेडिशन था उस टाइम पे, हाउएवर बिकॉज क्योंकि वहाँ पे उस टाइम पे दैट वाज एन एक्स्ट्रा दैट वाज बेसिकली दैट पोएट्री वाज अ मिस्ट एट दैट टाइम। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और जो मैंने आपको बताया ये सारी चीज़ों को W.J. लॉन्ग ने भी बोला हुआ है कि ये चीज़ें जो हैं ये इम्पॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल जैसे उन्होंने कहा है कि इट इज़ समड अप इन 5 ग्रेट प्रिंसिपल्स: देयर लव ऑफ पर्सनल फ्रीडम, देयर रिस्पॉन्सिव टू नेचर, देयर रिलीजन, देयर रेफरेंस ऑफ वुमनहुड एंड द स्ट्रगल एज अ रूलिंग मोटिव इन एवरी नोबल लाइफ। सो पोएट्री में आपको ये चीज़ें देखने की मिलेंगी। पेगन, यू कैन से दैट सेक्युलर वन is also a bit highlighted in the poetry of Old English literature, but religion was the dominating one. And now अब हम आते हैं कि और हमें क्या देखना है, और अब आते हैं फेमस पोएट्स पे। पोएट्स में सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट पोएट है वो केडमन है। केडमन क्यों है? क्योंकि ये सबसे पहले इंग्लिश पोएट थे। इन्होंने सबसे पहली इंग्लिश पोम लिखी थी। ये नॉर्थम्ब्रिया से आते हैं। आई टोल्ड यू कि पोएट्री मेजरली आपको नॉर्थ साइड में देखने को मिलेगी, ठीक है। केडमन का एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है विच आई वुड लाइक टू शेयर विद यू ऑल, इज़ दैट केडमन ही वॉज एन इलिटरेट पर्सन। ओके, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट ही वॉज इलिटरेट। एंड जब भी कभी ऐसे कोई सभा होती थी जहाँ पे होता था कि ठीक है हम भगवान के बारे में बात करेंगे, भगवान के लिए कुछ बोलेंगे, कुछ कहेंगे, कुछ गाएंगे, ही वॉज नॉट एबल टू डू दैट। एंड समटाइम्स ही ऑल्सो फेल्ट गिल्ट दैट वाई आई कैन नॉट डू दिस, वाई आई कैन से इट। सो वो गए अपने घर पे एंड ही स्लेप्ट इन हिज ड्रीम। ही स्टार्टेड रिसाइटिंग बाइबल। He was able to say whatever he wanted to say, and since then there was a drastic change in his personality, and that change was that he started writing or reciting poems. No, he was able to say whatever he wanted to through his works and all. So he became a poet and a zealous monk. Okay,
सो दिस पॉइंट इज़ इम्पॉर्टेंट इन हिज लाइफ दैट हाउ इट टर्न। जैसे मैंने आपको बताया था लिटरेरी हिस्ट्री के टाइम पे कि जब हम कोई भी पोएट पढ़ेंगे तो हम ये ज़रूर देखेंगे कि उसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट क्या था। तो केडमन में ये एक पॉइंट उसका टर्निंग पॉइंट था जहाँ से वो पोएट बन गया। इनकी केडमन्स हाइम इज़ एन इम्पॉर्टेंट वन। इसका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि 9 लाइन है, अलिटरेटिव है। अलिटरेटिव मीन्स कि रिपीटेशन इज़ देयर, और जो उन्होंने जो भी लिखा था वो भगवान को समर्पित करके लिखा था। बट यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि सबसे पहला इंग्लिश पोएम किसने लिखा था एंड इनका इम्पॉर्टेंट वर्क क्या है। नाउ कम्स द किनेवुल्फ। ये साइने वुल्फ और कुछ मत पढ़ना, इट्स किनेवुल्फ, द प्रोनाउंसिएशन इज किनेवुल्फ एंड ही इज़ नोन बिकॉज ऑफ हिज यूनिक सिग्नेचर। जो इन्होंने वर्क लिखा था उसमें एक बहुत रफ तरीके का साइन मिला है, फ्रॉम देयर वी नो कि ये किनेवुल्फ की पोएम्स है। और इन जिन 4 पोएम्स पे मिला है वो पोएम्स के नाम मैंने लिखे हैं, द क्राइस्ट, जीलियाना, द फेट्स ऑफ द अपोस्टल्स एंड इलीन। दीज आर द इम्पॉर्टेंट वन, तो आपको याद करनी ही करनी ये है, ठीक है। नाउ कम्स बीड। बीड को हम देखेंगे, इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पोएट। इन्हें हम सेंट बीड या फिर द वेनरेबल बीड भी बोलते हैं। एंड ही वॉज ऑल्सो गिवन द टाइटल कैम्पिटस कैलेंडर कैलकुलेशन। वाई ही वॉज called this? Because he wrote a very famous he wrote a book, he wrote a poem basically which was very famous, and that is the ecclesiastical history of English. Because why it was famous? Because he wrote each and every detail of the past through which we came to know, okay, this happened, that event, that book, and blah blah. So because of that we call Campetus calendar calculation, which is important, who is called as Campetus calendar calculation, and he is known as father of English history, which makes this particular thing, particular poet important. Now comes the Beowulf. Now we will be dealing with the poetry section, okay. So in poetry it is the Beowulf. Let me tell you from the title itself that Beowulf is the protagonist, हीरो है ये इस पोएट्री के। ये जो टाइटल है ये पहले नहीं था, ये बाद में रखा गया है प्रोटैगनिस्ट के नाम पे। ये किसने लिखी है किसी को पता नहीं है, क्योंकि ऑथर्स उस टाइम पे इतने अपना नाम लिखते नहीं थे, तो ये अननोन है, ठीक है। एनोनिमस ओरिजिन एक कैरेक्टरिस्टिक है लिटरेरी फीचर का, एंग्लो सैक्सन पीरियड के टाइम का। तो ये जो पोएम लिखी है ये हीरोइक पोएम है, एपिक पोएम है। एपिक पोएम इसलिए है क्योंकि बहुत लंबी पोएम है। हीरोइक पोएम इसलिए क्योंकि यहाँ पे इन्होंने अपने हीरो की अच्छी चीज़ों की और उसके जो भी वॉरियर जो एज अ मतलब हीरो जो एज अ फाइटर थे उनकी सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया। तो इट इज़ एन एपिक हीरोइक पोएम। उसके बाद में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है जो कि आपको ना ही यूट्यूब पे मिलेगी और ना ही जनरली आपको बुक्स में मिलेगी, वो है कैनिंग। कैनिंग एक पर्टिकुलर लिटरेरी टर्म होता है। वो इसलिए होता है जब हम कॉमन नाउन की जगह पे कोई मेटाफोरिकल फ्रेज यूज़ करते हैं, तो वी कॉल इट एज कैनिंग, ओके। सो दिस पॉइंट इज़ पर्टिकुलरली वेरी इंपॉर्टेंट। देन आता है कि पोइट्री थी कैसी, वो एलिटरेटिव पोइट्री थी, मतलब रेपिटेटिव वर्जन था। और ये कहाँ मिलती है, ये नॉवल कॉडिक्स में मिलती है। नॉवल कॉडिक्स क्या है, ये मैन्यूस्क्रिप्ट है। ये इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे मिली, दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और डायलेक्ट कौन था, वेस्ट सैक्सन एंग्लियन डायलेक्ट था, ठीक है। उसके बाद में क्या है कि इसके कितने लाइंस थे, 3180। आई टोल्ड यू कि बहुत लंबी पोएम है, इसीलिए इसे एपिक पोएम भी बोलते हैं। एंड इसका इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि ये कब प्रिंट हुई थी। तो कब प्रिंट हुई थी, द डेट इज़ नॉट नोन, बट इसका प्रिंटेड एडिशन जो कहलाता है वो थॉर्क्लीन कहलाता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। सब्जेक्ट मैटर क्या है कि इसमें सब्जेक्ट मैटर ये है कि इसमें जो बेवुल्फ है ही इज़ द हीरो ऑफ गिटार्स, जहाँ पे वो किंग होता है वहाँ का। और उसके बाद में इनकी फ़ाइट होती है, 2 बैटल्स हैं, उनका पूरा डिस्क्रिप्शन दिया होता है कि कैसे किसने फ़ाइट किया। ग्रैंडल वॉज दी नेगेटिव कैरेक्टर, तो उससे कैसे फाइट होती है, देन ड्रैगन से। सो ये सब चीज़ें हम इस सब्जेक्ट मैटर में देखेंगे। अब पोएम की एक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि वो बीच से स्टार्ट होती है। जब बीच से स्टार्ट होती है जो पोएम या उसे मीडिया रेस बोलते हैं, ठीक है। तो ये कौन सा, ये पर्टिकुलर टर्म यूज़ होगा कि दैट द पोएम स्टार्ट्स इन मिडल एंड दैट फीचर इज कॉल्ड एज मीडिया रेस। इंग्लिश ट्रांसलेशन इसका किसने किया है, सीमस हीने एंड टॉलकीन ने, जो कि इम्पॉर्टेंट होता है एग्ज़ाम के लिए आपके। सो स्टोरी अगर हम देखेंगे बेवुल्फ की, तो सबसे पहले क्या है कि स्टोरी स्टार्ट होती है 6th सेंचुरी में। कहाँ पे, स्कैंडिनेविया में। जो बेवुल्फ हैं वो गीट्स के किंग हैं एंड ही इज़ द लीड और द प्रोटैगनिस्ट। फर्स्ट बैटल होता है हेरोट में,
सॉरी, फर्स्ट बैटल होता है हेरॉट में, जहाँ पे किंग ऑफ डेन्स होते हैं, और वहाँ पे मिड हॉल में उन्हें बुलाया जाता है। तो बेसिकली मिड हॉल एक बहुत डोम शेप का एक बहुत बड़ा सा हॉल टाइप का होता है, जहाँ पे सारे ही लोग इंजॉय करते हैं, फंक्शन करते हैं, कुछ ऐसे करते हैं, वहाँ पे सब सोते गाते हैं, लेटते हैं। तो बार बार क्या, ग्रेंडल जो था वो बार बार लड़ाई झगड़ा कर रहा था, सब कुछ हो रहा था। तो ये चीज़ पता चली बेवुल्फ को, और बेवुल्फ के जो फादर थे उनकी हेल्प करी होगी द किंग ऑफ डेन्स ने, तो उन्हें ये बात पता थी। तो एज अ ग्रैटिट्यूड वहाँ पे गए, उन्होंने फंक्शन अटेंड किया, और ग्रैंडल के आने पे उन्हें मारा, लाइक दे हैड अ फाइट, एंड बेवुल्फ डिफीटेड ग्रैंडल। देन ये दैट, फिर उसके बाद में क्या हुआ, ग्रैंडल की मदर से एक उनका वॉर होता है जिसमें भी ग्रैंडल जीत जाते हैं, फिर वो वापस आ जाते हैं अपने राज्य में। एंड आफ्टर 50 ईयर्स देयर इज़ अगेन अ बैटल, और उस बैटल में ड्रैगन के साथ में होता है, जो कि वो उससे जीत तो जाते हैं, बट उन्हें कहीं ना कहीं चोट लग जाती है, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ विच ही डाइज। बट जब वो मर जाते हैं तो उनके आसपास के लोग जितने भी लोग होते हैं उन्हें क्रिमेट कर दे, उनकी क्रिमेशन वही करते हैं, एंड देयर इज़ अ क्रॉस एंड दे मेक इट अ टावर एंड ऑल। सो ये पूरा एक स्टोरी है कि उन्हें उनका क्रिमेशन होता है, सब होता है। ये पूरा बेवुल्फ का स्टोरी है जो मैंने आपको बताया है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो तो मैंने आपके लिए मार्क कर दिए थे पहले ही। नेक्स्ट आती है पोम विटसिट। विटसिट जो पोयम है उसका दूसरा टाइटल है फार ट्रैवलर। फार ट्रैवलर इसलिए है क्योंकि इसमें जो भी राइटर है, जो भी पोएट है सॉरी, उसने क्या किया हुआ है कि उसने पूरी वांडरिंग्स दिखाई हैं ऑफ द प्रोटैगनिस्ट, कि वो कैसे कहाँ घूम रहा है, और बेसिकली कि कहाँ कहाँ गया, किस किस जगह पे गया, ये सारी चीज़ें उसमें बताई गई हैं। ठीक है, जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि ऑल्टरनेटिव टाइटल क्या है और ये कहाँ पे प्रिजर्व, यानी एग्जिटर बुक, यानी मैनस्क्रिप्ट कौन सी किस मैनस्क्रिप्ट में मिलती है, वो एग्जिटर है। ठीक है, ऐसे डियोर के साथ में क्या है, डियोर इज़ अ पोम, ये एग्जिटर में ही मिलती है, और पर्सनल एलिगेक थीम है जो कि एंग्लो सैक्सन पीरियड में यूजुअली देखने को नहीं मिलती है। पर्सनल एलिगेक थीम क्या होती है, जिसमें पोएट लेमेंट कर रहा है अपने बारे में। अगर आप देखोगे ना, थोड़ा सा ब्रीफ में जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें जो पोएट होता है वो ही लेमेंट्स अबाउट कि एक उसकी लग्जूरियस लाइफ होती है और कैसे वो एग्जाइल लाइफ में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, फिर आती है द ड्रीम ऑफ द रूड। द ड्रीम ऑफ द रूड इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, तो इसलिए इसमें इतना कुछ है नहीं, बट एक पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि इसमें क्रूसीफिकेशन की बात करी गई है। ठीक है, किस टॉपिक की, किस पर्टिकुलर चीज़ की बात करिए, क्रूसीफिकेशन की बात करिए, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फिर द वांडरर एंड द सी फेरर, दीज आर द लीस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क्स। अब इतना कुछ है नहीं इसमें। फिर क्या है, मैन्यूस्क्रिप्ट्स। एट दैट टाइम देर वर 4 मैन्यूस्क्रिप्ट्स। फर्स्ट वन नॉवल कॉडेक्स, एग्जिटर बुक, वर्सिलिस एंड दी जूनियस। अब हर की एक एक कैरेक्टरिस्टिक है। एग्जिटर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक जितने पीछे के आपने चीज़ें पढ़ी ना वो सब एग्जिटर में अवेलेबल है। नॉवल कॉडेक्स में बेवुल्फ एंड जूडिथ मिलती है, वर्सली में एंड्रियाज एंड द ड्रीम ऑफ द रूड, एंड जूनियस में इट कंटेन्स केडमियन प्रोसेस। अब लिटरेरी फीचर्स पे आई टोल्ड यू कि पहला तो पेगन है। पेगन मतलब सेक्युलरिज्म वाज देयर। वहाँ पे वो लोग भी थे जो क्रिश्चियनिटी में नहीं मानते थे, बट हाउएवर क्रिश्चियनिटी वाज द डोमिनेटिंग वन। एनोनिमस ओरिजिन, मैंने बोला कि वो बहुत सारे वर्क ऐसे हैं कि जिसका आपको पता ही नहीं होगा किसने लिखा है, क्या लिखा है। एंड इमिटेटिव क्वालिटी, देयर वाज वन थिंग कि अगर आप एंग्लो सैक्सन पीरियड को देखोगे तो जो मैंने आपको 5 पॉइंट बताए थे ना, वही घुमा फिरा के आपको मिलेंगे। उसके अलावा कुछ भी क्रिएटिव आपको पूरे पोइट्री में नहीं मिलेगा। पोइट्री में तो तब भी ठीक है, प्रोज में तो बिल्कुल भी नहीं है। फिर आते हैं एंग्लो सैक्सन प्रोज। ठीक है, एंग्लो सैक्सन प्रोज किसने किया था, अल्फ्रेड द ग्रेट ने किया था। ठीक है, इसमें बाकी तो मैंने चीज़ें लिखी हैं वो मैं आपको बता चुकी हूँ। एंग्लो सैक्सन प्रोज किसने लिखा था, स्टार्ट कहाँ से हुआ था, वो स्टार्ट हुआ था अल्फ्रेड से। उसके बाद में इन्होंने बहुत सारे ट्रांसलेशंस किए थे ताकि वो अपनी लैंग्वेज को प्रिजर्व कर सके, क्योंकि जब डेन्स ने अटैक किया था इंग्लैंड पे, उस टाइम पे जो वहाँ की पर्टिकुलर लैंग्वेज थी वो काफ़ी ज़्यादा डिट्रियोट हो गई थी। इनके ट्रांसलेशन कौन कौन से हैं, बीड का एक्लियास्टिकल हिस्ट्री किया है, और उसके बाद में इनके 4 और ट्रांसलेशन इंपॉर्टेंट है। पेस्टोरल केयर ऑफ पोप ग्रेगोरी, द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, एंड बोथियस कंसोलिडेशन ऑफ फिलोसफी, सोलिलोकीज ऑफ सेंट ऑगस्टिन। दीज आर द इम्पॉर्टेंट वर्क। फर्स्ट एंड लास्ट पे मैंने स्पेशली लिख दिया है क्योंकि एग्जाम में अगर पूछेगा तो फर्स्ट और लास्ट से ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और इन्हें फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज बोलते हैं, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लीजिएगा कि फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज किसे बोलते हैं।
फिर आता है एल्फ्रिक, ही वॉज अ चर्चमैन एंड ही वॉज बेस्ट नोन फॉर ग्रामर, हिज फेमस वर्क वॉज कॉलिलॉकी। एंड इनके प्रोज स्टाइल में आपको क्या मिलता है कि ये जो भी लिखते थे वो सिंपल होता था, नेचुरल होता था। एलिटरेटिव जो एलिट्रेशन है ये एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक है जो आपको पोएट्री और प्रोज दोनों में ही देखने को मिलेगा। देन आते हैं वेल्स्टन, वेल्स्टन का फेमस वर्क था सेमी ल्यूपी एंड एंग्लोस, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं शेयर फोर्स एंड वीगर, इट्स रेपिटेशन ऑफ आइडियाज़ एंड द एलिटरेटिव नेचर ऑफ इट्स स्टाइल, इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और ये कौन थे? ये बाइशप थे एंड आर्की बाइशप थे, ठीक है। फिर आती है एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल। अब एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल पढ़ने से पहले ये पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल बोलते किसको हैं। एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल बेसिकली इट्स अ थिंग जो कि हमें हिस्टोरिकल या क्रोनोलॉजिकल इवेंट्स देता है चीज़ों का कि कब कौन सा इवेंट हुआ। तो एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल बेसिकली इज़ अ सीरीज ऑफ एनल्स विच कमेंस विद एन आउटलाइन ऑफ इंग्लिश ऑफ हिस्ट्री फ्रॉम जूलियस सीजर्स इन्वेजन टू द मिडल ऑफ द 5th सेंचुरी एंड कंटिन्यूज टू 11150, ठीक है। तो ये कहाँ से मिलता है हमें? इसका जो भी डाटा है वो कहाँ से मिलता है हमें? 60th BC से मिलता है एंड 1154 तक का मिलता है, ठीक है। और इसमें सारे ही मेजरली जो हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं कि कौन सा कब किस पे अटैक हुआ, कब कहाँ पे कौन आया, कौन सा इन्वेजन हुआ, कौन सी डायलेक्ट आई, कौन कौन से वर्क हुए, कौन सी किसने पोइट्री लिखी, कब कौन सा आया, ये सारी चीज़ें आपको एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल में देखने को मिलती है। तो बेसिकली आप बोल सकते हो कि ये भी एंग्लो सैक्सन लिटरेचर का एक पार्ट है कि उस टाइम पे ये बहुत ये था कि वहाँ पे आप डेटा प्रिजर्व करके रख रहे हो। और जो एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल एक जो चीज़ है ना, ये जो क्रॉनिकल्स हैं ये किससे इंस्पायर होके आए? ये रोमन से इंस्पायर होके आए हुए थे। फिर क्या है, अब एंग्लो सैक्सन पीरियड ख़त्म कैसे होता है? हमने जहाँ तक देखा था, क्या देखा था कि एंग्लो सैक्सन जो थे वो आए थे, ठीक है। अब एंग्लो सैक्सन लोग थे, उसमें क्या हुआ, वाइकिंग्स ने अटैक किया, ठीक है। वाइकिंग्स जो थे वो आए हुए थे, उन्होंने अटैक किया एंड दे अटैक ट्वाइस। तो उसके बाद में क्या है, जब वाइकिंग्स के अटैक के बाद में दे वन, फिर डेन्स के हाथ में, डेन्स ने अटैक कर दिया 3 हफ्ते के अंदर ही। इट वाज द डेन्स हु अटैक्ड। तो इंग्लैंड फॉल्स ऑन द डेन्स मीन्स इट वाज अटैक्ड बाय डेनमार्क एंड नॉर्वे। तो डेन्स ने जब अटैक कर दिया तो फिर क्या हुआ कि इंग्लैंड वाज ऑक्यूपाइड बाय डेन्स, ठीक है। बट एक बहुत कम समय के लिए ही इट वाज मतलब दे बेसिकली दे वर डिफीटेड बाय द नॉर्मन्स। एंड जब वो नॉर्मन से डिफीट हुए तो उस बैटल को क्या बोलते हैं? स्टैमफोर्ड का बैटल या फिर नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट और बैटल ऑफ हेसिंग्स, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ एंग्लो सैक्सन पीरियड एंडेड। अगर मैं और समरी में आपको बताऊं तो केल्ट्स आए, केल्ट्स के बाद में रोमन्स आए, रोमन्स के बाद में पिक्स एंड स्कॉट्स थोड़े टाइम के लिए आए, बट दे वर डिफीटेड बाय द एंग्लो सैक्सन। एंग्लो सैक्सन्स पे वाइकिंग्स आए, फिर वाइकिंग्स में क्या हुआ, दे वर डिफीटेड बाय देन। उसके बाद में क्या हुआ, डेन्स आए, डेन्स रूल्ड फॉर वेरी वेरी लेस टाइम। उसके बाद में देर वॉज अ अटैक बाय द नॉर्मन्स एंड दे देन सिंस देन दे स्टेट फॉर अ टाइम, ठीक है। फिर क्या है, इंग्लैंड में क्या है, इंग्लैंड वॉज डिफीटेड बाय द नॉर्वेजियन आर्मी, ठीक है, यानी कि वाइकिंग्स का एंड आ गया, ठीक है। उसके अंदर 3 हफ्ते के कम टाइम में ही नॉर्मन्स ने अटैक कर दिया, जो कि आइलैंड ऑफ इंग्लैंड के लिए अपने आप को प्रोटेक्ट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। एंड द नॉर्मन्स वन, सो दिस इज़ पर्टिकुलरली कॉल्ड नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, बैटल ऑफ हेसिंग्स। और इसी जगह से एंग्लो सैक्सन लिटरेचर आपकी ख़त्म हो जाती है। अब जब इसके आगे जो आप पढ़ोगे वो मिडिल इंग्लिश होगा या फिर एंग्लो नॉर्मन पीरियड होगा, ठीक है। अब नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट तो हमने देख लिया, ठीक है। अब एक बार हम फिर से ना पूरा समरी देख लेते हैं कि कैसे क्या हुआ, क्योंकि हो सकता है शायद आपको क्लियर ना हुआ है। केल्ट्स आए, केल्ट्स के बाद में रोमन्स आए, रोमन्स के बाद में पिक्स एंड स्कॉट्स ने अटैक किया तो रोमन्स लेफ्ट। फिर बचा कौन? केल्ट्स बचे। केल्ट्स ने एंगल सैक्सन एंड जूट्स को बुलाया प्रोटेक्ट करने के लिए, एज अ मर्सिनरी वो आए, बट उन्होंने इन्वेड कर लिया इस पर्टिकुलर प्लेस को। इन्वेड करने के बाद में क्या हुआ, ये यहीं पे एज अ नेटिव रह गए। फिर वाइकिंग्स ने अटैक किया, वाइकिंग्स आ गए। वाइकिंग के अटैक करने के बाद में
क्या हुआ कि डेन्स आए, डेन्स ने अटैक किया एंड दे कॉन्कर्ड, बट वो बहुत कम समय के लिए थे। उसके बाद में नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट हो गया, यानी कि किंग ऑफ नॉर्मैंडी ने अटैक कर दिया, ठीक है। किसके हाँ, किंग ऑफ नॉर्मैंडी ने अटैक कर दिया और इस तरह से एंग्लो सैक्सन पीरियड ख़त्म हो गया। जो लास्ट एंग्लो सैक्सन किंग थे जिनके साथ में जो लड़ाई हुई थी वो थी क्या बोलते हैं, हेरोल्ड गॉडविंसन, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ इट एंडेड, और एज रिज़ल्ट क्या हुआ कि फ्रेंच ऑफिशियल लैंग्वेज हो गई और इसी के साथ में एंग्लो सैक्सन पीरियड पूरा ख़त्म हो गया। फिर आता है, अगर और भी आपको फिर से देखना है तो आप देख लो कि इंग्लैंड ने डिफ़ीट किया नॉर्वेजियन आर्मी को, एंड ऑफ वाइकिंग एज, ठीक है। फिर 3 हफ्ते के अंदर ही अंदर इंग्लैंड को वाज अटैक्ड बाय नॉर्मन्स ने अटैक कर दिया इंग्लैंड पे। इंग्लैंड डिफ़ीट हो गया, एज अ रिजल्ट ऑफ विच नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट आ गया, जिसको बैटल ऑफ हेसिंग्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब बैटल ऑफ, अब जब नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट आ गया या नॉर्मन्स ने इन्वेट कर लिया, तो रिजल्टेंट क्या आया कि फ्रेंच ऑफिशियल लैंग्वेज हो गई। यहीं से जो है मिडिल इंग्लिश पीरियड शुरू हो गया। अब क्या था कि जो ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर में आप क्रिश्चियनिटी या रिलीजन को बहुत डोमिनेंट स्टेट पे देखते हो, बट जैसे ही आप मिडिल इंग्लिश पीरियड में जाओगे आपको एक रैशनलिज्म दिखने लग जाएगा, ठीक है। एक मॉडर्निस्ट अप्रोच दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। अब फिर आते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि बेसिकली इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, आई हैव टोल्ड यू एवरीथिंग, सो रिमूविंग इट। अब ये आपके सामने एक टिप मैंने दी है कि आप कैसे याद रखोगे कि कौन कौन से मेजर इवेंट्स हुए हैं ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर में। पहला क्या है, केल्ट्स आए थे, आई टोल्ड यू देवर ब्रिटन्स एंड गेल्स, ठीक है। रोमन कॉन्क्वेस्ट हुआ, एंग्लो सैक्सन इन्वेजन में आए, फिर वाइकिंग्स आए, फिर नॉर्मन आए, ठीक है। अब इसे हम याद ऐसे करेंगे, कैट एट रेड रैट एट वैन। अब सबका कैपिटल लेटर का जो है वो फर्स्ट लेटर है, जैसे केल्टिक, रोमन, एंग्लो सैक्सन, वाइकिंग्स एंड नॉर्मन, ठीक है। ये मेरी आज की टिप एंड ट्रिक है। सो विद दिस आई एम एंडिंग द पर्टिकुलर टॉपिक। कुछ इसका पोर्शन बचेगा, या अगर आपको कुछ डिटेल में पूछना है मुझसे या कुछ नहीं समझ में आया है तो आप मुझे बता देना, मैं लाइव आके आपको बता दूंगी। एंड माय डियर 21 सब्सक्राइबर्स, थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड रिस्पेक्ट विच यू पीपल हैव गेव मी। ट्रस्ट मी, आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको बेस्ट से बेस्ट मटेरियल प्रोवाइड करा सकूँ, जितना हो सकता है आई एम ट्राइंग। थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, या अगर आपको थोड़ी सी कोई कमी दिखी हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, या अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझसे बोल देना। आई एम हियर टू हेल्प यू ऑल द टाइम। थैंक यू सो मच।